Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is our next video in the Basic to Advanced LRDA practice series, and today's day 36, Logical DI Part 6. So let's start with the set for today. And before we begin, Ignite batch is currently live. So if you're a student who is actually preparing for the OMITs, there's a second batch for you, right? The details are there on the screen. Also, the numbers are there on the screen. You can definitely call the team and inquire about this particular batch, right? And also, if you're looking for a self-paced cat 25 batch, right, that includes everything, right? All the recorded lectures, all the topic tests, all the sectionals, and all the full length mocks. So this batch is also running, right? You can get more details about this particular batch in the description also. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पर्टिकुलर सेट से. सो लॉजिकल डीआई कर रहे हैं, एंड एज ऑलवेज फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution, right? So chalo, I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding this. Let's first understand the general information given, and then we'll actually move to the questions. So what do we have? 5 contestants, Samir, Ranveer, Milind, Sahil and Arjun, are awarded points by each of the 5 judges J1, J2, J3, J4 and J5 in the table given below. Numbers mentioned in parenthesis brackets में against the name of the contestant are the points awarded to that particular contestant by the judge mentioned in the corresponding row. So for example, judge J1 ने समीर को 9 points दिए हैं, मिलिंद को 6 points दिए हैं, रणवीर को 5 points दिए. That is absolutely clear from the table. Then x is the sum, ये जो x है. So this x is the sum of the points earned by the 3 contestants mentioned in any particular row of the table as a percentage of total points awarded to all the contestants by the judge mentioned in the same row. So a lengthy line, but the meaning is very straightforward actually. ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि J1 ने 9 points, 6 points और रणवीर को 5 points दिए है ना. ओवरऑल हर एक जज 5 जो हमारे कंटेस्टेंट है उनको पॉइंट्स देंगे. तो ये कह रहा है कि ये जो 3 नंबर है मिला के, जिनका नाम मेंशन्ड है इस पर्टिकुलर टेबल में, जो J1 ने जिनको ये 3 नंबर दिए हैं, इनका जो टोटल मिला के पॉइंट्स होगा, वो J1 जज ने जो पांचों लोगों को मिला के पॉइंट्स दिया होगा उसका 80% है. सो फॉर एग्जांपल J1 ने, I'll just write a variable, you will understand it very clearly. J1 ने अगर टोटल मिला के 5 कंटेस्टेंट्स को सपोज x पॉइंट्स एलोकेट किए टोटल, तो 9 प्लस 6 प्लस 15, 11 प्लस 9, 20 जो होगा, जो 20 होगा वो इस x का क्या होगा, 80% होगा. सो 80% की वैल्यू एक्चुअली में दी हुई है. सो इवेंचुअली अगर आप नोटिस करोगे तो जो रिमेनिंग 20% है, बाकी दोनों कंटेस्टेंट का मिला के स्कोर आपको मिलता जाएगा. और यही हमारा सिंपल सा आइडिया है इस पूरे टेबल का. ठीक है, आगे जाके उसने पूरा एक्सप्लेन किया है, राइट. ये लास्ट वाले पर जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जांपल द एग्रीगेट पॉइंट्स गिवन टू समीर, मिलिंद एंड रमीज एंड रणवीर. समीर, मिलिंद एंड रणवीर, इनका टोटल मिला के जो भी पॉइंट्स होगा by judge J1 is 80% of the total points given by judge J1 to all the 5 contestants. I hope that is clear. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, each judge awards distinct points to all the 5 contestants and points awarded by the judges are non-negative integral values. Non-negative का मतलब जीरो भी अलाउड है. तो इसने बोला है कि हर एक जज ने सारे के सारे 5 कंटेस्टेंट को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं, तो रो वाइज रेपिटेशन नहीं होगा, कॉलम वाइज रेपिटेशन डेफिनेटली हो सकता है. फॉर एग्जांपल अ सिंगल कंटेस्टेंट कैन गेट द सेम स्कोर फ्रॉम 2 और मोर जजेस, बट from a specific judge no 2 contestants actually got the same points, right? And that is the meaning of this entire set. Now सबसे पहले काम ये करते हैं, इस टेबल के नंबर्स को यहाँ पे उतार लेते हैं. So I'll actually go ahead and write all the names of the 5 contestants and judges के नाम भी. So J1, J2, J3, J4 and J5. देन कंटेस्टेंट के नाम भी लिख लेते हैं जिस ऑर्डर में मिल रहा है. लेट्स से समीर है होगा, मिलिंद है हमारे पास, रणवीर है, देन साहिल है, एंड लास्ट वी हैव अर्जुन, राइट? अर्जुन. इनके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको भी यहाँ पे पहले उतार लेते हैं. ठीक है, सो समीर, मिलिंद एंड रणवीर के पॉइंट्स 9, 6 एंड 5, इन दोनों का भी फिलहाल नहीं पता है.
अभी देख लेंगे उसको, उस 80% को ब्रेक कर लेंगे। देन J2 ने कितना कितना दिया, 8 6 एंड 4। किसको, साहिल को 8 दिया, अर्जुन को 6 दिया, समीर को कितना दिया, 4 दिया। नेक्स्ट मिलिंद को कितना मिला, 11, अर्जुन को कितना मिला, 7 एंड साहिल को कितना मिला, 6। नेक्स्ट साहिल को 8 मिला, समीर को 7 मिला एंड अर्जुन को कितना मिला, 2। रणवीर को कितना मिला, 8, राइट, रणवीर 8, मिलिंद 5 एंड लास्ट समीर 3। यहाँ कितना आ गया, 3। नाउ अब अगला पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे था उसको पहले कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 80% इन तीनों का स्कोर है ना, तो इन दोनों का स्कोर मिला के क्या बचेगा उसकी वैल्यू में ये लिख लेते हैं। और सिंपली करना, इतना कौन आपने पढ़ा है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 80% और 20% का क्या रेशियो है, 4:1 ना। तो ये तीनों का जो मिला के वैल्यू होगा उसको हम जब बाई 4 कर देंगे तो इन दोनों का मिला के सम आएगा। सो इट्स लाइक 9 + 6 15 + 5 20। सो 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों का मिला के सम कितना आएगा, 5। तो बस मैं वही सम लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 19 तीनों का है, J2 वाले में 90, तो बचा हुआ 10 है। सो 9:1, तो 1/9 करना है इन तीनों का सम का, और वो इन दोनों का सम आ जाएगा मिलिंद एंड रणवीर का। सो 1/9, तो 4 + 8 12 6 18, 18/9 दैट इज 2। नेक्स्ट इसमें कितना है, 80 है, तो 80 और 20 अगेन 4:1, तो 1/4 कर देंगे। सो 11 6 17, 17 एंड 7 इज 24, 24/4 कितना बचा हमारे पास, 6। यहाँ कितना है, 85, रिमेनिंग कितना होगा, 15, तो 85 एंड 15। सो क्या रेशियो बनेगा, 5:17 एंड 5:3, तो 17:3 का रेशियो है। इसका एडिशन एज इट टर्न्स आउट 8 + 2 10 + 7 17 ही है, तो 17:3 है, मतलब इन दोनों रिमेनिंग वैल्यूज का सम कितना आ जाएगा, 3। देन J5 में 80, तो रिमेनिंग 20, अगेन 4:1, तो 1/4 करना है इन तीनों के सम का। सो 3 + 5 8, 8 + 8 इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। तो ये दोनों का सम भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली इस टाइप के साइड में अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स को ब्रेक डाउन करना है, बट क्या हम यहाँ पे यूनिकली नंबर्स लिख सकते हैं, लेट्स जस्ट क्विकली ऑब्जर्व। जैसे 5 है, मुझे बस क्या इंश्योर करना है कि 5 ऐसे दो नंबर में ब्रेक हो विच आर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो 0 तो यूज कर सकते हो। ऑल्सो रो वाइज रेपिटेशन नहीं होना है, तो जैसे 5 को कैन आई एक्चुअली ब्रेक डाउन दिस 5 एज 0 5, नो दैट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इस रो में ऑलरेडी हमारे पास 5 प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी जगह 0 लिखोगे तो दूसरी जगह 5 आ जाएगा, सो 0 5 विल नॉट बी पॉसिबल। बट देन 1 and 4 पॉसिबल है, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, 1 and 4। और ऑल्सो ऑर्डर मेरे को नहीं पता रहेगा कि किधर 1 आएगा किधर 4 आएगा, छोड़ो उसको। सिमिलरली 5 को मैं 2 and 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा है, सो 2 and 3 में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, 2 3 या फिर 3 2। ऐसे कर करके हमारे पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली आएंगी। जैसे 2 को ब्रेक करना है तो 1 1 में ब्रेक नहीं कर सकते हो बिकॉज रो में रेपिटेशन नहीं करना है, बट 0 2 में ब्रेक होगा, बट 0 2 में भी हमारा अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ब्रेकिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज राइट नाउ। हम चलते हैं अपने जरा क्वेश्चंस पे, क्योंकि अगर कुछ यूनिकली आ रहा होता तब तुम लिख लेते, बट यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी। या तो नंबर्स के ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी आएगी, ऑल्सो नंबर के ब्रेकडाउन मान लो मिल भी गए तो उसमें अरेंजमेंट की फर्दर पॉसिबिलिटी आएंगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज ऐसे बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे और लिखने में इट विल ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन। सो बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अप्रोच करना। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द मिनिमम पॉसिबल एग्रीगेट नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्नड बाय साहिल कैन बी। तो साहिल का जो कॉलम का एडिशन है वही उसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। अब देखो साहिल को अगर मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूं तो 8 + 6 + 8 तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, 8 + 6 + 8 तो 16 + 6 22 तो होगा ही होगा, राइट, 22 तो हमारा होगा ही होगा। अब बाकी जो दोनों वैल्यूज है उसको हम कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज कर ले। तो कितना मिनिमाइज कर सकते हो, यहां तो मिनिमम क्या वैल्यू रख सकते हो, 0 आप सोच सकते थे, बट हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था 0 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, बट 5 इस रो में ऑलरेडी है, सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती। कैन आई डू दैट एज 1, यस, 1 and 4 में ब्रेक कर सकता हूँ, कोई रेपिटेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 1, तो एक जगह 1 आ जाएगा। ऑल्सो लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज हियर, यहाँ पे इन दोनों नंबर का एडिशन 4 बनाना है, मिनिमम 0 हम सोच सकते हैं ना, बट 0 के साथ फिर ये 4 आएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली नो, कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं 0 रख सकता हूँ बिकॉज आई ट्राइंग टू मिनिमाइज, डोंट फॉरगेट दैट। सो यहाँ पे मेरा 0 आ सकता है, बस यही है।
साहिल का मिनिमम पॉसिबल एग्रीगेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है. सो 22 प्लस 1 प्लस 0 एंड दैट वुड बी 23, ऑप्शन 3, राइट. ऑल्सो लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, डन. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड में, इफ द पॉइंट्स गिवन टू मिलिंद बाय द जजेस J2 एंड J4 आर द सेम. ओके, तो मिलिंद J2 एंड J4 आर द सेम. क्या रखोगे? दोनों को सेम रखना है, बट नोटिस करो J2 का टोटल 2 पॉइंट्स रिमेनिंग है जो कि इन दोनों में डिवाइड होना है. अब इन दोनों में अगर डिवाइड होना है 2 को, तो 1 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इट हैज टू बी ए 0 इन 2 का कॉम्बो. अब या तो यहाँ 0 यहाँ 2 है, या फिर यहाँ 2 और यहाँ पे 0 है. बट ये भी क्लू है कि ये दोनों को मेरे को सेम भी रखना है, राइट. इन दोनों को मेरे को सेम भी रखना है. अब नोटिस करो यहाँ पे, लेट्स से जस्ट जस्ट वन केस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो फिर यहाँ पे भी 2 आएगा ना. बट इस रो में तो ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा. तो सिंपल सा तुम्हें मिल जाएगा कि यहाँ पे फिर कितना रखोगे, बिकॉज 2 को 0 2 में ब्रेक करना है, 2 रखने में प्रॉब्लम आ जा रही है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे 0 आएगा. तो ये 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी माय बैड, सेम सेम. सो इट हैज टू बी 0, राइट. ये 0 है तो ये भी 0. एंड 3 बनाना है तो ये 0 एंड 3 में ब्रेक होगा. फिर ये 2 बनाना था, 0 2 में ब्रेक होगा. तो ये पार्ट आ गया. और क्या दिया हुआ है, एंड इफ जज J3 gave 4 points to समीर, सो J3 ने 4 points to समीर दिया. सो इधर 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आया, 6 का एडिशन बनाना था तो यहाँ पे 2 आना पड़ेगा. पूछा क्या है, देन द टोटल पॉइंट्स अर्न बाय रणवीर इज, ओ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. रणवीर का मेरे को पॉइंट्स मिल गया. सो कितना हो गया, 5 + 2 + 2 + 3 + 8. तो 5 + 2 7, 7 + 3 10, एंड 8 + 2 इज ऑल्सो 10. सो कितना हो गया, 10 + 10 दैट इज 20, ऑप्शन 4. नाइस, सिंपल एंड इजी, राइट. ओके, लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड कैंडिड कंटेस्टेंट्स वुड डेफिनेटली नॉट अर्न मोर एग्रीगेट पॉइंट्स देन साहिल. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो. इसने बोला है कि किस कंटेस्टेंट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये डेफिनेटली साहिल से ज्यादा एग्रीगेट पॉइंट्स नहीं स्कोर करेगा. इसकी बात की हम गारंटी कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सोचना. मैं साहिल का क्या निकाल लेता हूं, मिनिमम निकाल लेता हूं. ठीक है, साहिल का पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, मिनिमम निकाल लेता हूं. अगर किसी भी पर्सन का, आप समझना, अगर किसी भी पर्सन का लेट्स से मिनिमम वाला वैल्यू ही, राइट, अगर साहिल से ज्यादा गया, अगर साहिल का लेट्स से मिनिमम हमारा ये है ना, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड कैंडिडेट्स वुड डेफिनेटली नॉट अर्न मोर पॉइंट्स देन साहिल. सो हम तो कोशिश करेंगे ना कि वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड बी डेफिनेटली स्कोरिंग मोर एग्रीगेट पॉइंट्स देन साहिल. बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या देखना है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है. डेफिनेटली मेरे को बताना है कि कुछ भी हो जाए साहिल से उनका ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम कैसे सोचे, देखो साहिल का अगर मैं मिनिमम पॉसिबल स्कोर एक सेकंड के लिए सोचूं, तो साहिल का हमने एक्चुअली में मिनिमम पॉसिबल स्कोर निकाला था, दैट इज 22 + 1 + 0 23. साहिल का 23 कम से कम होगा, 23 से नीचे नहीं जा सकता. अब जैसे अगर मैं नाम चेक करना स्टार्ट करूं, लेट से अगर मैं रणवीर को चेक करना स्टार्ट करूं, तो क्या रणवीर का स्कोर साहिल से डेफिनेटली ऊपर होगा या फिर डेफिनेटली कम होगा. कैसे चेक करें, जैसे रणवीर का 5 + 8 करेंटली कितना है, 13 है ना. 5 + 8 इसका करेंटली कितना है, 13 है. अब देखो यहां पे क्या क्या स्कोर आ सकते हैं, यहां पे क्या क्या स्कोर आ सकते हैं. जैसे यहां पे मुझे 2 ब्रेक करना है, तो मुझे पता है कि यहां पे 0 2 का कॉम्बिनेशन ब्रेक होना है. बिकॉज मुझे ये इंश्योर करना है कि रणवीर का डेफिनेटली साहिल से ऊपर नहीं होगा, तो मैं रणवीर का ना मैक्सिमम पॉसिबल सोचूंगा कि रणवीर का यार मैक्सिमम कितना जा सकता है. क्योंकि मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो में भी वही चेक करना है कि इस पर्सन का जा ही नहीं सकता साहिल से ऊपर. तो रणवीर को अगर मैं मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट्स दूं तो कितना आ सकता है, 0 2 का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ कितना आ सकता है, 2 आ सकता है. आई होप दैट इज क्लियर. यहाँ पे मैक्सिमम तुम 2 डाल सकते हो. यहाँ मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं सोचूं फॉर एग्जाम्पल, तो 6 ऑलरेडी है, तो 6 का ब्रेकडाउन में आई कैन नॉट डू अ 0 6, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, मे बी 5 आ सकता है, आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट
फिर यहाँ पे अगर मैं सोचूं यहाँ मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 3 का ब्रेक डाउन किस में होना है, 3 का ब्रेक डाउन 1 एंड 2 में तो नहीं हो सकता, बिकॉज 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट कैन नॉट बी 1 एंड 2, 2 का रेपिटेशन हो जाएगा, तो इट हैज़ टू बी 0 3, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। नाउ एट दिस जंक्शर इफ आई सी रणवीर का स्कोर कितना है, तो 5 प्लस 2 7, ये कितना था, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 12 और 8 20, 20 प्लस 3 23। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रणवीर का मैक्सिमम ही 23 जा सकता है और साहिल का मिनिमम 23 जा सकता है। तो कैन आई नॉट से कि रणवीर कुछ भी कर ले, रणवीर को कुछ भी स्कोर मिल जाए, मैक्सिमम यही बनेगा ना, रणवीर का मैक्सिमम जो है वो साहिल के मिनिमम से ऊपर नहीं गया है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं रणवीर वुड बी एटलीस्ट वन ऑफ द पर्संस who definitely not earns more aggregate points than साहिल, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। सो रणवीर तो मेरा कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, बट हाँ यहाँ प्रॉब्लम ये है, रणवीर तो करेगा बट यहाँ पे हमारे पास 1 एंड 2 भी है। अब देखो थोड़ा स्मार्टली खेलोगे तो रणवीर तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है ना हमारी कंडीशन, ठीक। तो अब इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें बोथ 1 एंड 2, क्योंकि रणवीर तो इंक्लूडेड होना चाहिए आंसर में, तो या तो ये आंसर है या तो हमारा ये आंसर है। अब ये अगर आंसर है तो उसके लिए आपको सिर्फ चेक किसको करना है, अर्जुन को चेक करना है, सो ओनली चेक फॉर अर्जुन, कि अर्जुन का कितना आएगा, और वही सेम आइडिया लगाओ, अर्जुन को मैक्सिमाइज कर दो। अब देखो जैसे अर्जुन का मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो एक्चुअली उसी पे डिपेंड करेगा साहिल के मिनिमम पे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 5 ब्रेक करना है। जब साहिल को फॉर एग्जाम्पल तुमने मिनिमम दिया, 0 तो रखे नहीं थे, है ना, 1 रखा था आपने, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 4 ही आ सकता है। वही सेम लॉजिक यहाँ पे 5 नहीं आ सकता अर्जुन को मैक्सिमाइज अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो। यही सेम चीज यहाँ पे, इसमें हमने 0 4 का कॉम्बिनेशन ब्रेक करा था, साहिल को मिनिमम देखा और अर्जुन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ 0 एंड 4 ब्रेक डाउन हो सकता है। ये अर्जुन का मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे ऊपर अर्जुन का स्कोर नहीं जा सकता। एंड नोटिस करो इसका एडिशन करेंटली आ कितना आ रहा है, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 6 इज 23, ये है इस भाई साहब का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। तो अर्जुन का जो मैक्सिमम ही है वो साहिल के मिनिमम को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आई कैन डेफिनेटली से कि अर्जुन इज आल्सो गोइंग टू सैटिस्फाई माय कंडीशन, दैट इज ही डेफिनेटली डज नॉट अर्न मोर एग्रीगेट पॉइंट्स देन साहिल। तो ये दोनों सही हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। राइट, आया समझ में? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टोटल पॉइंट्स अर्नड बाय रणवीर एंड अर्जुन इज 30, सो रणवीर एंड अर्जुन का टोटल पॉइंट्स का एडिशन ही हमारा 30 है, देन द सम ऑफ टोटल पॉइंट्स अर्नड बाय मिलिंद एंड साहिल इज, ओ लेट्स डू दिस। नाउ रणवीर एंड अर्जुन का टोटल ही हमारा मिला के 30 है, बट अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यूज रिमेनिंग है, so maybe it has to do something with the like numbers given, maybe this 30। let's do a quick addition of the values we already have। करेंटली मेरे को जितना पता है उसको जरा ऐड करके देख लो कितना बन रहा है। तो रणवीर का एडिशन करेंटली 8 प्लस 5 13 है अभी, है ना, 13। और यहाँ कितना है अर्जुन का, 6 7 एंड 2 7 8 9 9 6 इज 15, नाइस। नाउ ये कह रहा है कि रणवीर का और अर्जुन का सब मिला के फाइनली दोनों कॉलम्स का एडिशन 30 होना चाहिए। राइट नाउ विद 5 वैल्यूज रिमेनिंग इट इज ऑलरेडी 28, तो मतलब बची हुई वैल्यूज से आपको सिर्फ क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। एंड नोटिस एक चीज, मेरे को 2 मिलने वाला है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे नोटिस करने लायक, दैट इज यहाँ पे जब मैंने नोटिस करा था, यहाँ पे जैसे 5, जैसे क्या है यहाँ पे, बहुत छोटी वैल्यूज ही तो 1 2 3 4 5 जगह पे रिमेनिंग है, तो यहाँ पे जब हम इसका नंबर का ब्रेक डाउन कर रहे थे तो 0 5 तो एनीवेज ब्रेक हो नहीं सकता, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा ना, बिकॉज इस रो में 0 5 का ब्रेक डाउन है नहीं कि मैं बोल दूं कि ये 0 आ सकता था, नहीं, ये वाली वैल्यू कम से कम आपकी क्या बनेगी, 1 तो बनेगी ना। 1 2 3 4 5 वैल्यूज का एडिशन 2 है और ये कह रहे हैं कि कम से कम आपका ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कम से कम 1 आएगा। और कहीं पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे एक और कंडीशन मिल गई ना कि एटलीस्ट 1 आना है, तो मेरा वो 2 पता चल जाएगा कि 2 कहाँ से बनना है, तो यहाँ एटलीस्ट एक 1 आएगा, 2 आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जगह चेक करते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 1 आना जरूरी है, नो इट कुड बी ए 0 0 4 का ब्रेकडाउन हो सकता है। इसमें आ जाओ जरा, यहाँ पे 2 बनना है, यहाँ पे भी 0 हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, नाइस, ये हो गया ना।
अगला वाला नोटिस करो, जैसे यहाँ पे जीरो नहीं रख सकता, बिकॉज फिर सिक्स का ब्रेक डाउन जीरो सिक्स में होना पड़ेगा, सिक्स रिपीट हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे और यहाँ इन दोनों जगह में कम से कम वन तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि टू बनाना है तो दोनों जगह वन और वन का ब्रेक डाउन होगा, एंड दैट्स इट, दैट विल एक्चुअली कंप्लीट योर एंटायर टेबल। जैसे अब यहाँ वन है तो यहाँ कितना आ जाएगा, फोर। यहाँ वन है तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाइव। अब बिकॉज रणवीर एंड अर्जुन में वन वन आप दे चुके हो, तो टू जो बचा हुआ था थर्टी बनने के लिए वो टू आ गया, तो रणवीर एंड अर्जुन में बाकी वैल्यूज भी आपकी पता चल जाएगी, दैट इज जीरो, कुछ नहीं आना चाहिए वहां से कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, उससे तुम्हारी पूरी टेबल फिल हो गई, क्योंकि टू का ब्रेक डाउन जीरो एंड टू में होगा, थ्री का ब्रेक डाउन जीरो एंड थ्री में होगा, फोर का ब्रेक डाउन जीरो एंड फोर में होगा, दैट्स इट। और हमें क्या पूछा था, देन द सम ऑफ टोटल पॉइंट्स अर्न बाय मिलिंद एंड साहिल इज, तो मिलिंद एंड साहिल इज, इन दोनों कॉलम्स का एडिशन कर दो, तो सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस इलेवन, एट प्लस इलेवन नाइनटीन, नाइनटीन और एट, नाइनटीन और एट ट्वेंटी सेवन, मिलिंद और साहिल, फोर प्लस एट ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट ट्वेंटी, ट्वेंटी और टेन, ट्वेंटी और टेन थर्टी, तो थर्टी प्लस ट्वेंटी सेवन, दैट इज इवेंचुअली 57, राइट। सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी सेट आई विल से, राइट। इसमें बस आपको मेन वो आइडिया क्लिक करना है, क्योंकि नंबर्स का ब्रेक डाउन आसान है, बट अगर आप इनिशियली नंबर्स तोड़ने चले गए तो आपको काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी। सो अ स्मार्टर अप्रोच वुड बी टू गो टू द प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू दिस टेबल, एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या करो, अपने नंबर्स को ब्रेक करो। So I hope you would have got this set correct also. And if you still have any doubts with respect to any set or this set particularly, you can just put that in the comments. Thank you. This will be all for today. Let's meet in the next video. Thank you. Bye.